everybody, welcome to my channel The Poo Factor, and this is my very first episode of the new series called All About Weddings. और यहाँ हम बात करेंगे all the aspects related to a wedding. So if you are an aspiring wedding planner या आपके सर्कल में किसी की शादी है, so this video is gonna be very helpful for you. So इस वीडियो को पूरा देखिएगा and अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, like it and subscribe to my channel. You know, I was very excited to start this series because my channel description itself says a wedding planner and a crazy travel stories, foodgasms and lifestyle. From past 10 years, I am a part of event industry and मुझे अपना knowledge आप सबके साथ share करते हुए बेहद खुशी हो रही है. One important thing, इस series में आप जो भी देखोगे, it's based on my experience and facts. So ये completely मेरा perspective है and I think आपको इससे काफ़ी ज़्यादा help मिलेगी. Let's get started with the first episode of All About Weddings, how to make your destination wedding a roaring hit. We all are familiar with the term destination weddings, right? जब भी आप अपने गेस्ट को एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे लेके जाते हो फॉर द सेलिब्रेशन, इट्स कॉल्ड अ डेस्टिनेशन वेडिंग एंड इसका स्केल टोटली डिपेंड करता है आपके बजट पे. बट हर स्केल की डेस्टिनेशन वेडिंग सुपर हिट हो सकती है बाय फॉलोइंग सम सिंपल आइडियाज एंड स्टफ. And of course, the main key to it is to win the hearts of your guests. So here are 11 must do things to have a dhamal destination wedding. Here we go. Number 1, room hampers. Imagine आप किसी वेडिंग में गए हो एंड रूम में एंटर करते ही आपको एक प्यारा सा रूम हैम्पर आपका इंतज़ार करते हुए दिखाई देता है. Won't you feel special? सो येस, एक रूम हैम्पर रखना एक वेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इट कैन बी अ स्मॉल रूम हैम्पर और इट कैन बी अ lavish room hamper. I'm planning to make a video on various types of room hampers too. So let me know in the comments if you're interested in that. So yes, सबसे first thing, room hamper with a cute note on it is must have. Number 2 आता है traditional rituals with fun events. ट्रेडिशनल रिचुअल्स वेडिंग में तो होनी है. वी कैन नॉट अवॉइड दैट बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज़ ऑल अबाउट द रिचुअल्स. सो हल्दी फंक्शन हो गया, मायरा हो गया, मेहंदी हो गया, ये सारे ट्रेडिशनल फंक्शंस तो होने ही हैं. इनफैक्ट गणेश पूजा भी होती है. सो ये सब फंक्शंस को हम कैसे ट्विस्ट दे सकते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उस पर्टिकुलर फंक्शन में शायद आपके घर वाले ज़्यादा इंटरेस्टेड हो बट बाकी गेस्ट के लिए भी हमें सोचना बहुत ज़रूरी है. तो अगर आप एक वेडिंग प्लानर हो तो आपको आपके क्लाइंट को ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि कैसे एक ट्रेडिशनल फंक्शन के साथ साथ वी कैन डू अ फन इवेंट. फॉर एग्जांपल, हम एक मेला रख सकते हैं अलॉन्ग विद द हल्दी फंक्शन. हम मेहंदी के साथ मे बी कसिनो या कुछ ऐसे प्लान कर सकते हैं. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन प्ले अराउंड. बहुत सारी आइडियाज़ है. यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव ऑन दैट पार्ट. बट येस, वो ट्रेडिशनल रिचुअल को कैसे एक फन इवेंट पे कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट यू हैव टू थिंक ऑन. Number 3 is my favorite also. It's fancy choreographed संगीत. According to me, एक choreographed संगीत होना destination wedding के लिए बहुत important होता है. So not only during the wedding, जो rehearsals होती है, those are also very memorable. And I have worked with some phenomenal choreographers during my journey. एक संगीत होना बेहद ज़रूरी है बट उसकी लिमिटेशंस जानना भी बहुत ज़रूरी है. As a wedding planner, it's your duty to make your client understand that and of course suggest them with good choreographer options. Number 4 पे आता है the quirky photo booth with funny placards. Photo booth functions में होना बहुत important होता है. After all, people are dressed up and they would want a good backdrop to click a picture. And placards होता है तो it becomes very quirky and people get involved. And groups बना के they click a pictures, something like this and this and this. सो अगर आपको आपके गेस्ट को स्टार्टिंग ऑफ द फंक्शन ही चार्ज अप करना है तो ऐसे टाइप के क्वर्की फोटो बूथ्स प्लीज़ रखिएगा. नंबर 5, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंटरैक्टिव एंकर. एक एंकर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक वेडिंग फंक्शन में और एक सुपर हिट वेडिंग के लिए एक सुपर हिट एंकर होना बेहद ज़रूरी है. अगेन, आई नो सम वेरी गुड एंकर्स जो अपना जॉब जानते हैं, जिनको पता है गेस्ट को कैसे इन्वॉल्व करना है, कैसे लोगों की टांग खींचनी है बट उसका लिमिट भी वो जानते हैं. एंकर्स जब भी आप सिलेक्ट करो तो मेक श्योर दे आर वेल वर्स्ड विद वेडिंग इवेंट्स एंड उनको पता है वेडिंग रिचुअल्स के बारे में और गेस्ट से कैसे इंटरेक्ट करना चाहिए. रिमेंबर वन थिंग, अगर आपका होस्ट अच्छा है आपका वो पर्टिकुलर इवेंट अच्छा होना ही है. Number 6,
यार अगर एक अच्छा एंकर है तो गेम्स और गिफ्ट्स तो होने बनते हैं। पीपल लव प्लेइंग गेम्स एंड जब उसके लिए कोई गिफ्ट हो तो भाई सोने पे सुहागा हो जाता है। मेक श्योर जब भी आप गिफ्ट्स रखो तो वो थोड़े स्टैंडर्डाइज्ड गिफ्ट्स हो। फॉर एग्जांपल हमने एक बार ऑक्शन करवाया था, ऑक्शन का गेम था एंड उसका बम्पर प्राइज़ थी एक स्कूटी, सेकंड प्राइज़ था एक टीवी। ऑल्सो देर वॉज अ वेडिंग जहाँ हमने आईफोन बम्पर प्राइज़ में रखा था। देर वर एयरपॉड्स एंड 10-15 ट्रॉली बैग्स एंड डिफरेंट वराइटी ऑफ गिफ्ट्स एंड पीपल जस्ट वेंट क्रेजी एंड दैट वॉज एन इवेंट टू रिमेंबर। नॉट नेसेसरी यही लेवल के गिफ्ट्स हो, ऑफकोर्स बजट पे ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है, बट अगेन चॉकलेट जैसे गिफ्ट्स भी ना रखें। कीप समथिंग जिसे जीत कर लोग याद रखें, ओके ये गिफ्ट हमने इनकी वेडिंग में जीता था। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज आफ्टर पार्टी फॉर यंगस्टर्स। आफ्टर पार्टी एक डेस्टिनेशन वेडिंग में होना इज़ लाइक एडिंग होल सोल टू योर इवेंट एंड आफ्टर पार्टी सीन्स आर समथिंग यंगस्टर्स लुक फॉर। It can be alcoholic party or it can be non-alcoholic party, that's completely fine, but after party रखो ही रखो। मुझे याद है हमने काफ़ी बार ऐसी पार्टीज़ की हुई है एंड इनफैक्ट हमने काफ़ी बार बॉनफायर नाइट्स भी की हुई है एज आफ्टर पार्टी, जहाँ पीपल जस्ट रिलैक्स बारबेक्यू एंजॉय कर रहे हैं, देयर इज अ गिटारिस्ट एंड इट्स अ वेरी वेरी सूदिंग नाइट। सो या यू हैव टू पुट योर आइडियाज़ टुगेदर कि एक आफ्टर पार्टी को कैसे आप सुपर हिट बना सकते हो और उसे कैसे आपके आइटिनरी में इन्वॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर 8 पे है अ डैशिंग डीजे। एक वेडिंग डीजे में नॉर्मल डीजे में काफ़ी डिफरेंस होता है। वेडिंग डीजे शुड हैव अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ कैसे अलग अलग एज ग्रुप को साथ में ला के उनके टेस्ट की म्यूज़िक बजानी चाहिए, सो एवरी वन इज़ इन्वॉल्व इक्वली सिंस एवरी फंक्शन विल नीड म्यूज़िक, इसलिए एक अच्छा डीजे आपको हायर करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 9 पे आता है लाइवली लाइव बैंड। अगर आप एक लाइव बैंड आपकी डेस्टिनेशन वेडिंग में रख सको, ट्रस्ट मी वो इवेंट सुपर हिट होना ही है, बिकॉज जब म्यूज़िक लाइव बजती है एंड जो सिंगर है जो सबके साथ इन्वॉल्व होता है, नाचता है, गाता है, पीपल जस्ट गो मैड बिहाइंड दैट। सो डू कीप अ लाइव बैंड एटलीस्ट फॉर वन फंक्शन एंड सी हाउ मच डिफरेंस इट विल मेक टू योर इवेंट। पर्सनली मैंने काफ़ी बार देखा हुआ है सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल दे डोंट वांट टू डांस ऑन डीजे, बट जब भी वो लाइव म्यूज़िक बजने लगती है एंड द सिंगर कम्स ऑन द फ्लोर एंड उनको खींच के जब भी डांस करवाता है, मैजिक बिगेन्स। स्लोली कमिंग टूवर्ड्स एंड, नंबर 10 पे आता है यूनिक फूड स्टॉल्स। वेडिंग इज़ ऑल अबाउट गुड फूड राइट, सो उसी फूड के साथ अगर हम एक यूनिक एक्सपीरियंस भी उन्हें दें तो कैसा रहे। देर आर वराइटी ऑफ यूनिक फूड दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट एंड उसके भी काफ़ी सारे वेंडर्स अवेलेबल हैं। यू रिमेंबर जब टर्किश आइसक्रीम फेमस हुई थी, देन द स्मोकी फूड, नाइट्रोजन फूड जो फेमस हुआ था। सो ये सारी चीज़ें जब ये ऐड करते हो ना, वो स्टॉल काफ़ी ज़्यादा हिट होता है एंड पीपल आर लाइक हाँ इनकी वेडिंग में हमने वो चीज़ देखी थी। ऐसे ही काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जो मैंने खुद एक्सपेरिमेंट की हुई है अपने वेडिंग्स में एंड इट वॉज एक्चुअली अ सुपर हिट काउंटर। मैं उसका भी आपके साथ शेयर करूँगी वीडियो। लेट मी नो इफ़ यू इंटरेस्टेड इन दैट एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन यूनिक फूड आइटम्स दैट यू कैन इन्वॉल्व इन योर वेडिंग। And last and most important thing to have in your destination wedding to make it super hit is the couple entry. अगर कोई कपल ना भी बोलता है ना तो भी आपको उनको मनाना पड़ेगा एक कपल एंट्री रखने के लिए, बिकॉज दे आर दी हाईलाइट ऑफ द वेडिंग एंड हर फंक्शन में उनकी एंट्री एक स्पेशल वे में होना बेहद ज़रूरी है। राइट फ्रॉम द बिग प्रॉप्स टू नॉर्मल वॉकिंग एंट्री, एक कपल एंट्री थोड़े ताम झाम के साथ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मेक श्योर हर एक फंक्शन में जब भी आप डेस्टिनेशन वेडिंग स्पेशली कर रहे हैं, हर एक फंक्शन में उनकी एंट्री एक अलग वे में हो एंड एक स्पेशल वे में हो। ट्रस्ट मी, अगर ये सारी चीज़ें आपकी डेस्टिनेशन वेडिंग में होगी तो इट विल बी अ रोरिंग हिट एंड गेस्ट्स विल कीप टॉकिंग अबाउट इट फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। अगर आप एक वेडिंग प्लानर है तो इन सारी चीज़ों के वेंडर्स एंड आर्टिस्ट ऑप्शंस अलॉन्ग विद द रेट्स आपके पास हैंडी होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग डेटाबेस सब कुछ ईजी कर देता है। Keep looking out for more episodes of all about weddings because I'll be giving you the best options in every category. एंड अगर आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपके सर्कल में या फैमिली में किसी की वेडिंग है तो गाइज प्लीज़ हायर अ वेडिंग प्लानर एंड अपनी खुद की लाइफ आसान कर दीजिए। बस इवेंट एंजॉय करो यार, क्योंकि आपके गेस्ट भी तभी इन्वॉल्व होंगे जब आप खुद एक्टिवली हर इवेंट में पार्टिसिपेट करोगे।
आई होप ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा एंड लेट मी नो इन कमेंट्स आप और किस बारे में जानना चाहते हो, वेडिंग के बारे में और क्या एक्सप्लोर करना चाहते हो. आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट. अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी और के लिए भी यूज़फुल होगा तो प्लीज़ उनके साथ भी शेयर कीजिएगा. फ्री नॉलेज है, बांट लो. That's it from the episode 1 of All About Weddings. Guys, apart from being a wedding planner, I'm also a crazy traveler and foodie. So if you want to check out my travel vlogs, tap here. Yes, इस section पे tap कीजिए. And since I stay at Vasai, I have a special series dedicated to it, which is called Wonderful Vasai. So you have to tap here to watch all my Wonderful Vasai series. Thank you so much for joining me, guys. You can also follow me on my Instagram. That's my handle, the Poo Factor. And I'll see you really soon. Until then, take care and be safe. Ciao.